इसी सब्सटेंस को सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, तो एट लो कॉन्सेंट्रेशन इट विल बिहेव एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, राइट? बट as the concentration increases, the molecule starts aggregating with each other, right? They start aggregating with each other, and then when almost 100 particles are combined with each other, they will form a particle size which is in the colloidal range. Those type of particles, those type of brightness are called associated colloids. So चलो देखते हैं फिर. So the solution at low concentration of this first phase. This first phase act as a normal electrolyte. ठीक है, it will act as a normal electrolyte. But as the concentration increases, ठीक है ना? But as the concentration increases, that is around 100 particles, they start aggregating with each other, and forms a particle size of colloidal range. तो colloidal range तो पता ही है. And these type of colloids are called associated colloids. Colloids are called is associated colloids. इनको अपन कहते हैं associated colloids, right? The concentration at which, अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर भाई कौन सा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में अपन लिख सकते हैं. तो soap and detergent solutions. So soap and detergent solutions generally form associated colloids. There is a certain concentration at which the associated colloids are formed. So the concentration at which associated colloids are formed, is called critical missile concentration. Right? And the temperature, मतलब उसमें concentration भी चाहिए अपन को और temperature भी चाहिए. And the temperature above which this is formed is called, ठीक है, is called Kraft temperature. इसको अपन कहते हैं Kraft temperature. तो अपन डिनोट भी इसको T के जैसे करते हैं, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर को अपन TC लिखते हैं, तो क्राफ्ट टेम्परेचर को अपन TK भी लिखते हैं. अभी अगर अपन चेक करेंगे तो जैसे एक बार अपन इसको देख लेते हैं कि किस टाइप से ये बन रहा है सर. बिकॉज सोप जो होते हैं वो दे आर राइट ना हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, बट उनका कोलाइडल रेंज में साइज नहीं होता है. अपन ने कहा क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन में ऑलमोस्ट कितना पार्टिकल कंबाइन होगा, तो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन होगा ऑलमोस्ट 100 पार्टिकल्स. अगर 100 पार्टिकल कंबाइन होंगे तो एक मिसल बनेगा.
पहले अगर एक पार्टिकल अगर लो कॉन्सेंट्रेशन पे अपन ऐड करेंगे, जैसे सपोज करता है, यू नो दैट soap are surfactants. Surfactants, that is salt of, right? Yeah, अपन सीधे लिख ही देते हैं, surfactants of molecular formula. Molecular formula जो soap होता है उनके molecular formula जो होते हैं, they are like this: CnH2n plus 1 into CONA. मतलब they are sodium salt of carboxylic acid. ये COH लिखता तो carboxylic acid होता है, तो they are sodium salt of carboxylic acid. And detergents, जो detergents होते हैं, so detergents are CnH2n plus 1 SO3Na. मतलब सोप जो होता है उसमें जो नहाने वाला साबुन होता है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और जो क्लोथ्स वॉशिंग करने, क्लोथ को वॉश करने वाला, जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है उसमें सल्फोनिक ग्रुप होता है, सोडियम सल्फोनेट होता है. So these are sodium carboxylate, they are sodium sulfonate. Where value of N, where N is equal to or greater than 15 to 20 होता है. जो N का वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, मतलब अपन ऐसे लिख लेते हैं N is equal to 15 to 20. अब ग्रेटर देन लिखेंगे तो 15 से कितना ज्यादा लिखेंगे, इक्वल टू 15 से लेके 20 तक हो सकता है N का. तो these are called surfactants. अपन कुछ एग्जांपल भी लिख सकते हैं surfactants के कि भाई कौन कौन से surfactants होते हैं, है ना. तो ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं सोडियम, जैसे एग्जांपल लिखते हैं अपन सोडियम पाल्मेट, राइट, सोडियम स्टेरेट, सोडियम ऑयलेट. वैसे सोडियम तो रहेगा ही रहेगा अगर अपन को सोप लिखना है. तो जैसे अपन लिखेंगे C17H33CONA, कभी कभी इसमें अनसैचुरेशन भी होता है, राइट. जैसे अपन लिखेंगे सोडियम पाल्मेट होगा तो C17H हो जाएगा, दैट इज 17, तो अपन कितना लिखेंगे बताओ, CnH2n plus 1 में 35, बोलो भाई. Yes. लिखूं, ठीक है, तो C that is 35 and CONA, सोडियम स्टेरेट will be this. यहाँ से लिखूंगा 17H33 35 and CONA, और this will be equal to, that is अपन ऐसे लिख सकते हैं CONA. So they are higher salt of carboxylic acid with a higher, right, fatty acids. तो अपन ऐसे लिख सकते हैं these are the soap solution. अब अगर अपन चेक करेंगे ना, देख लिया ये 16 है, 33 है, CONA है, मतलब खैर बाकी तो आप लिख लोगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अपन को लिखना है, ये होगा. तो अब अपन क्या करेंगे कि भाई इसमें ना, जैसे अब ये सर्फेक्टेंट्स जो है, तो अपन क्या करेंगे इसमें, तो C17 मतलब एक बड़ा सा हाइड्रोकार्बन चेन होता है. So 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16 like that we can make.
और इसमें पर लिख सकते हैं दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें पर लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये तो हाइड्रोकार्बन, ये वाटर रिपेलिंग होता है, राइट, ये वाटर रिपेलिंग होगा। और लेट में 33 होता है, एक उसमें अनसैचुरेशन भी होता है। मैंने अनसैचुरेशन जनरली लिखा नहीं, बट देयर इज अनसैचुरेशन, थोड़ा बहुत चेंज होता है, 1 डिग्री अनसैचुरेशन रहता है इसमें। तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, दिस इज वाटर रिपेलिंग। तो इसको जो वाटर रिपेलिंग होता है उसको अपन कहते हैं हाइड्रोफोबिक, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है ना। और जो ये वाला पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं वाटर अट्रैक्टिंग, ये वाटर रिपेलिंग होगा। और जो वाटर अट्रैक्टिंग होता है इसको कहते हैं अपन हाइड्रोफिलिक, ये वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होगा, ये वाटर अट्रैक्टिंग, लाइक दैट, वाटर रिपेलिंग एंड वाटर अट्रैक्टिंग। तो जब अपन वाटर मतलब वाटर में ऐड करते हैं, जैसे सपोज करते हैं अपन ने एक बकेट में पानी ले लिया, एक बकेट ले लेते हैं और इसमें पानी ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज वाटर इन दैट, ठीक है। अपन एक बकेट ले लेते हैं, उसमें पानी ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल देते हैं, जैसे घर में अपन सर्फ में पानी बनाते हैं ना, पानी में सर्फ डाल देते हैं। तो जब अपन थोड़ा सा सर्फ डालेंगे ना, तो ये जो डिटर्जेंट, अगर डिटर्जेंट है तो इट विल बी दिस वन, और अगर सोप को भी डाल सकते हैं और सोप को भी अपन डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अपन जब सोप को अगर पानी में डालते हैं तो क्या होता है देखते हैं, तो ये वाला पार्ट होगा ना, जो वाटर रिपेलिंग वाला पार्ट, वो ऊपर रहता है, ऐसे रहता है, और अंदर आता है जो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है, मतलब CONA वाला पार्ट जो होगा वो अंदर आएगा, क्योंकि वाटर वाटर अट्रैक्टिंग है। तो ये जो ऐसे लाइन ये से शो किया रहा है, दैट इज नथिंग बट ये वाला पार्ट जो वाटर रिपेल करता है, तो वो अंदर नहीं आता है, बिकॉज दैट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पानी में थोड़े डिसॉल्व होगा। तो लो कंसंट्रेशन पे क्या होते हैं, ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना वो बाहर रहता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो अंदर आता है। इट इज लाइक दिस, ऐसे बना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। बट व्हेन द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, when concentration increases, ये low concentration, this is at low concentration. When concentration increases, ठीक है ना, तो ये ना काफी पास पास आ जाता है कंसंट्रेशन बढ़ने से। So there is a wonderful force of attraction between hydrophobic part. Wonderful force of attraction among the hydrocarbon chain between, that is hydrocarbon chain, right now hydrophobic part, due to which it starts aggregating, वो aggregate होना शुरू हो, due to which it starts aggregating, due to this it will start aggregating। और जब वो aggregate होना शुरू होगा तो aggregate होके वो एक मतलब वाटर में इस टाइप से बना देगा, एक 100 पार्टिकल aggregating of around 100 particles, वो 100 पार्टिकल मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो वो इस टाइप से एक पार्टिकल बना देता है 100 पार्टिकल्स का। मैंने ये बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसे किया ताकि अपन इसको ऐसे बना दें, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा क्योंकि वाटर अट्रैक्टिंग होगा, तो इधर ना थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं ताकि अपन को दिखे कि क्या होगा। तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। जब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो उनके सरफेस पे जो टेंशन आएगा, सरफेस टेंशन की वजह से वो क्या करेंगे, स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट विल बी लाइक दिस, ये नेगेटिव मतलब ये वाला पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, वो नेगेटिव पार्ट वाटर की तरफ होता है और ये सारे के सारे अंदर की तरफ आ जाते हैं, इनमें आपस में अट्रैक्शन होता है
वो अट्रैक्शन की वजह से वो पार्ट अंदर की तरफ आ रहा है। तो इस टाइप से वो एक स्पेरिकल शेप बना लेते हैं, और ये जो स्पेरिकल शेप बनेगा, इसी स्पेरिकल शेप को जो ये बनेगा विथ ऑफ 100 पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड वन मिसल। तो इनको अपन कहते हैं मिसल फॉर्मेशन, राइट ना। इसलिए एसोसिएटेड कॉलाइड्स में जब अपन लो कंसंट्रेशन होगा तो दे विल बिहेव एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl वगैरह होता है। But as the concentration increases, there is a attraction between the surface of these hydrophobic part, और जो surface पे depend करता है force of attraction, that is called van der Waals forces, right? That's why we call them as a surfactants. तो आपस में अट्रैक्ट होगा तो ऑलमोस्ट जब ये 100 पार्टिकल होंगे तो आपस में कंबाइन करके वो बना देंगे, राइट। ये हाइड्रो H2O के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिखा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज वाला, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड मिसल। ये पानी है इधर, और इस पानी में अपन ने बनाया ये मिसल, ये एक मिसल बनाया। सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड कॉलाइड्स। अब क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट सॉल्यूशन, detergent solution is 10 to the power of -4 to 10 to the power of -3 molar concentration, that is moles per liter at 298 Kelvin। मतलब रूम टेम्परेचर पे कितना कंसंट्रेशन होगा तो मिसल बनेगा सोप और डिटर्जेंट्स का, तो वो अपन एग्जांपल लेंगे। सो दिस इज अबाउट द, ठीक है। अब इसमें अपन क्या कहेंगे, जैसे अगर अपन को पता है कि क्लीनिंग एक्शन ज्यादा अच्छा किसका होता है, डिटर्जेंट्स का, मतलब इसका क्लीनिंग एक्शन ज्यादा अच्छा होता है इससे, क्योंकि ये हार्ड होता है। सो अगर अपन क्लीनिंग एक्शन की बात करेंगे तो अपन ऐसे लिख लेंगे कि भाई कौन अच्छा मतलब क्लीन कर सकता है, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई। सो अगर अपन क्लीनिंग एक्शन की बात करेंगे of detergents is more than soap, obviously वो तो अपन को पहले से पता। क्लीनिंग एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एन। अगर आपका वैल्यू ऑफ एन ज्यादा है तो भी क्लीनिंग एक्शन ज्यादा होगा, जिसमें एन का वैल्यू ज्यादा होगा मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, उसमें भी एन का वैल्यू अच्छा होगा। तो वी कैन राइट दैट कि एन का वैल्यू अपन कैसे बता सकते हैं। दिस इज अबाउट द एसोसिएटेड कॉलाइड्स, इतना ही पूछेंगे अभी अपन से। और इससे आगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का भी कुछ पार्ट है एसोसिएटेड कॉलाइड्स में, मतलब उसमें अपन सर्फेक्टेंट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एनायनिक वाले बताए हुए हैं। कैटायनिक भी सर्फेक्टेंट होते हैं। फिर वाटर पे भी डिपेंड करता है कि आप सॉफ्ट वाटर में कपड़े धो रहे हो, हार्ड वाटर में कपड़े धो रहे हो, उन पे भी नेचर पे डिपेंड करेगा। तो वो सारे पार्ट वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो वो अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी अपन इतना रखते हैं। तो या अपन एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं ऐसे नोट करके, द कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स आर अमोनियम सॉल्ट्स। तो एक आइडिया रहेगा आपको कि कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं। तो जिसमें अमोनियम सॉल्ट लिखा होगा, जैसे यहाँ पर अपन ने कैटायनिक पार्ट को क्या लिखा है, सोडियम, तो कैटायनिक पार्ट को अपन वहां पर अमोनियम जैसे होता है, और हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड, वन ऑफ द हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय आर ग्रुप, तो अमोनियम सॉल्ट होता है। अगर आप चाहो तो इसको 3 कर देना और एक H को R से रिप्लेस कर लेना, दैट विल बी अमोनियम सॉल्ट्स। तो वो कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स है। एंड इवन न्यूट्रल सर्फेक्टेंट्स भी होते हैं। न्यूट्रल सर्फेक्टेंट्स हम उतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही कि मैं इन सब कंपाउंड को उतना आपको बताऊं।
तो उसी में अपन फंस जाएंगे, नहीं तो भाई क्या क्या मतलब करना है सर बता दो। तो वो ईथर्स होता है और एल्कोहलिक। तो मैंने ना इन जनरल लिख दिया कि अपन को एक आइडिया रहेगा कि हाँ सर ने हमें बताया था कि उसमें एक ईथर और एक अल्कोहल होता है। तो न्यूट्रल सरफेक्टेंट्स एक्चुअली अल्कोहल होते हैं, और कैटायनिक अमोनियम सॉल्ट होता है, जबकि एनायनिक सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट होता है। तो ये एक आइडिया आपको रहे। सो दिस इज द एसोसिएटेड कोलैप्स। ये आपका एसोसिएटेड कोलैप्स है। सोप का क्लीनिंग एक्शन किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन पे। एन का वैल्यू अगर ज्यादा है तो अच्छा सोप होगा, राइट। और अगर एन का वैल्यू सेम है तो फिर अपन सल्फोनिक ग्रुप को बताएंगे कि वो ज्यादा अच्छा क्लीनिंग एक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू सोडियम के। ठीक है, तो ऐसे बता सकते हैं। अब अपन प्रॉपर्टीज ऑफ कोलेट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलेट्स, पहले अपन प्यूरिफिकेशन पढ़ लेते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलेट्स, अगर कोलेट्स में इंप्योरिटीज होगा तो फिर वो अनस्टेबल होगा, तो अपन को प्यूरिफाई करना होगा। कोलेटल सॉल्ट्स with impurities are unstable. सब को प्यूरिफाई करना होता है। प्यूरिफाई करने के लिए हमारे पास मेथड जो होता है, एक तो अपन डायरेक्ट फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन, राइट। तो फिल्ट्रेशन में भी नो दैट हम क्या करेंगे, विल हैव अ फिल्टर पेपर, स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर, और उससे अपन पास करेंगे, उससे फिल्टर कर लेंगे डायरेक्टली। So the colloidal solids pass through is passed through filtered by a filter from a filter paper, right? Using filter paper, filtered using filter paper. अब होता क्या है कि अलग अलग कलर्स का पार्टिकल साइज का रेंज अलग अलग होता है। 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर लिखा ना अपने पार्टिकल साइज। तो इस फिल्टर पेपर के जो पोर साइज होंगे, जिससे पार्टिकल वहां पर, राइट ना, कॉलेज में पार्टिकल वहां पर ना निकले, तो उसके लिए अपन कहेंगे कि द पोर साइज ऑफ दिस फिल्टर पेपर कैन बी एडजस्टेड बाय द यूजिंग द फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। अपन फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं, बाद में उसको सुखा देते हैं, ड्राई करने के बाद उसको साफ करके वापस यूज कर सकते हैं, तो पोर साइज एडजस्ट हो जाते हैं। जो हमें चाहिए उसके हिसाब से अपन फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन बना लेते हैं। द पोर साइज of filter paper can be adjusted by using the formaldehyde solution. By using formaldehyde solution, HCHO solution है, तो ये पढ़ा हुआ है, that is called a formaldehyde solution. पूरे लिख देता हूँ formaldehyde, that is a formaldehyde HCHO solution. So एक और बात थी सर, ये कोलॉइड्स में impurities क्या होते हैं? The impurities are crystalloids. Impurities जो होते हैं ना, crystalloids, मतलब केटाइन और एनाइन्स। So जैसे सोडियम, NaCl can be the impurity. So cation anions, उनको अपन कहते हैं क्रिस्टलाइड्स, दे आर द इम्प्योरिटीज, राइट। अब डायरेक्ट फिल्ट्रेशन बताने की जरूरत नहीं है कि बीकर लगाएंगे, फनल लगा देंगे, उसमें फिल्टर पेपर लगा देते हैं अपन, जैसे स्कूल में आपने फिल्ट्रेशन किया होगा। उसके बाद सोल्यूशन डालेंगे तो वो इधर फिल्ट्रेट क्रिस्टलाइड आ जाएगा,
फिल्टर पेपर से पास करके, और इधर अपना रेसिड्यू जो होगा दैट विल बी अ कलर। बाद में अपन फिर इसको सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके वापस सोल्यूशन बना देंगे, राइट। तो दूसरा फिल्ट्रेशन, जैसे अब ये फिल्ट्रेशन जैसे दूसरा पॉइंट लिखा था, दूसरा पॉइंट तो अपन ने काफी मतलब ऑलमोस्ट सभी ने नाम सुना होगा, दैट इज डायलिसिस। डायलिसिस डायलिसिस क्या होता है, तो वी ऑल नो दैट कि भाई, या तो एक तो अपन सिंपल फॉर्म में बता सकते हैं कि हम क्या करेंगे, एक वेसल लेते हैं और उसमें वाटर ले लेते हैं, राइट। और उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि भाई, अगर जैसे एक बैग ले लेते हैं, उस बैग में अपन कोलाइड रख लेंगे। ये बैग है मेरे पास, उसको बांध के ऐसे रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है अपन ने। इसमें अपन ने कोलाइडल सोल्यूशन लेते हैं, इम्प्योर कोलाइड्स। अपन क्या करेंगे, इसको उसमें वाटर में ऐसे रोटेट कर देंगे, तो इससे ना बाहर आ जाएंगे क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टल्स, तो क्रिस्टल्स विल कम आउट, विल कम आउट वाटर में वॉश करने से। फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं भाई, अगर जरूरत पड़ेगा कि नहीं हमको ज्यादा क्रिस्टलाइट, मतलब ऐसे भी बता सकता था कि आपने एक बैग ले लिया और उस बैग को इसको क्लोज कर दिया आपने, और इसमें अपने पास गिवन है सपोज करते हैं कोलाइड, इम्प्योर कोलाइड। तो रादर देन उसको रोटेट रोटेट करने के लिए अगर थोड़ा अच्छा मेथड यूज कर लेते हैं, यहां से वाटर, स्ट्रीम ऑफ वाटर पास करते हैं और यहां से वाटर निकालते रहते हैं, तो होगा क्या, जो यहां से वाटर, सॉफ्ट वाटर होगा, यहां से ये इसमें एंटर करेगा और इसके क्रिस्टलाइट बाहर आते रहेंगे, दैट विल बी अ डायलिसिस। जो किडनी वगैरह का डायलिसिस होता है वो क्या होता है, यही तो होता है, ये किडनी है, उसमें एक पाइप डालेंगे और वाटर से उसको वॉश कर देंगे सलाइन सॉल्यूशन से, तो उसके क्रिस्टल्स क्या होंगे, किडनी के क्रिस्टल डिसॉल्व होकर बाहर निकल जाते हैं। और अगर फिर भी वो क्रिस्टलाइट बाहर नहीं आ रहे, ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे ठीक है, इसमें अपन एक काम करते हैं भाई, इम्प्योरिटी क्या है, आयंस ना, इलेक्ट्रोड लगा, इलेक्ट्रोड लगा। अब इलेक्ट्रोड लगाऊंगा तो ये कैटाइन जो है, ये एनोड जो है वो एनाइन को बाहर निकालेगा, अट्रैक्ट करेगा ना फिर तो। और नेगेटिव एंड है वो इसके कैटाइन्स को बाहर निकालेगा। अब अट्रैक्शन शुरू कर दिया ना हमने, अगर अपने आप बाहर नहीं आ रहा तो अट्रैक्ट करके बाहर निकाल, and this will be called as electrodialysis. This is called as electrodialysis. तो इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना जरूरी होता है, तो अपन ऐसे निकालते हैं। What method we can write now? We got it. What is dialysis? Huh? The removal of impurities from the cations and anions from the colloidal solution. So removal of cations and anions from salt by washing with suitable solvent. Suitable solvent. अब यहां पर वाटर सॉल्वेंट, तो अपन यहां पर वाटर ले रहे हैं सॉल्वेंट को, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायलिसिस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। और अगर स्कूल में लिखना है तो पूरा लिखना है, ये मतलब आप इसको बोल सकते हो, दैट इज अ राइट ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है।
membrane, by which only ions can pass, but colloid pass नहीं करेगा. जैसे अपन कहेंगे ना सेमी परमेबल, हमारा स्किन जो है ना दैट इज सेमी परमेबल. समर्स में अपन को पता है जब ज्यादा स्वेटिंग होता है ना तो कभी कभी अपने क्लोथ्स पे ना ऐसे व्हाइट कलर के ऐसे वो देखे होंगे, राइट ना, व्हाइट डिपॉजिट्स आ जाता है क्लोथ पे. वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ स्वेट में जो सॉल्ट बाहर आता है एनी पॉजिटिव सीएल लिंक, वो सॉल्ट की वजह से व्हाइट आता है. सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है आप एक मशीन ले लो और इसको ऐसे अटैच कर लो एक बैरियर से, सो दैट कि मैं इसको रोटेट कर पाऊं. यहाँ पर अपन ऐसे अटैच कर देते हैं ताकि रोटेट. अब इसमें अपन ले लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन अपन को पता है, सॉल्व लिख दो बस चलेगा. अब इसको सेंट्रीफ्यूज करना मतलब हाई स्पीड पे रोटेट करना. रोटेशन ऑफ सॉल्व एट हाई स्पीड. जब अपन इसको हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे ना तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो इधर डिपॉजिट हो जाएंगे, है ना. और ये जो होगा इंप्योरिटी यहां आएगा. हाई स्पीड द कोलाइडल पार्टिकल डिपॉजिट एट द बॉटम, और आप प्रेसिपिटेट एट द बॉटम लिख सकते हो. एट द बॉटम and the impurities will remain in the solution. Remain in solvent. अब अपन क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे. बाद में ये जो बचेगा इसको फिर सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके कोलाइडल सॉल्यूशन वापस बना देंगे. दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. आफ्टर फिल्ट्रेशन इसको हटा देते हैं अपन. आफ्टर रिमूविंग द सॉल्यूशन, upper layer solution, the PPT will be dissolved in suitable solvent. Suitable solvent to get colloids. लो भाई वापस को colloid मिल गया अपन को suitable solvent में dissolve करके. Suitable solvent में dissolve करके अपन को वापस colloids मिल जाएगा. ये होता है चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ colloids. So there are different properties of colloids. एक तो होता है that is colligative properties. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करके जो वेरी फर्स्ट चैप्टर अपन को 12th में पढ़ना है ना, वो पूरा अपने आप में एक चैप्टर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. जनरली अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड. तो ये प्रॉपर्टी जनरली अपन यूज करते हैं टू गेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ colloids, अननोन colloids. So due to
अब अपन इसमें सिर्फ सेंटेंस लिख लेते हैं क्योंकि अभी तो ये नहीं पूछने वाले, टीचर को भी पता है कि ये 12th क्लास का टॉपिक है, लेकिन अगर मैं नहीं लिखूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। आप रिवाइज करोगे तो आपके पास पूरा पार्ट तो रहेगा कम से कम। ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलोइडल particle, it has low value of मोल फ्रैक्शन। अगर अपन को पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले आपको मोल्स कैलकुलेट करना है तो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट लिखना होगा। अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है तो उसके मोल्स बहुत कम होंगे, और मोल्स अगर कम होंगे तो ऑब्वियसली बात है मोल फ्रैक्शन भी कम होगा। सो ड्यू टू द हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इट हैज लो वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन, so it can show colligative properties, or colligative properties depends on the mole fraction, so it can show colligative properties property। अब colligative properties क्या क्या होते हैं, अगर वो पूरा चैप्टर में अपन को पढ़ना है तो मुझे लगता नहीं कि मतलब अपन को ज्यादा डिस्कस करना चाहिए इसको, इस पार्ट को, क्योंकि पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। या अगर अपन लिख सकते हैं ऐसे कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते क्या क्या है। अब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब जो वेरी फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे 12th में वो यही पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है अपने आप में। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये अपन 12th में पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे तो टीचर को भी पता होगा, वो पूछेंगे नहीं। बट हाँ, कोई अगर पूछेगा व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको नाम तो बता दिया कि दीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और वो क्यों बोले जाते हैं वो अपन अब 12th वाले चैप्टर में, वेरी फर्स्ट चैप्टर है तो अपन पढ़ लेंगे। दूसरा अपन लिख सकते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज तो छोटे क्लास में पढ़ा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होता है टिंडल इफेक्ट, ये अपन ने पढ़ा हुआ है टिंडल इफेक्ट। इवन आपने जब ट्रू सॉल्यूशंस बताए थे, कोलोइडल सॉल्यूशन बताए थे, तो भी आपने टिंडल इफेक्ट बताया था। टिंडल इफेक्ट होता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट is passed through the colloidal solve. So the transmitted light is always decreases. The intensity of transmitted light always decreases due to scattering. Light always decreases due to scattering of light by colloidal particles. So scattering of light by colloidal particles. So there is the scattering of light by the colloidal particles. अब इसके लिए अगर अपन एग्जाम्पल लिखेंगे तो देखो अपन ने एरोसोल भी लिखा हुआ है, मतलब स्मोक को लिखा है ना, ये डस्ट पार्टिकल इन द एयर, दैट इज कोलोइडल पार्टिकल। अपन ने 8 टाइप के कलर्स लिखे थे, सॉल, जेल, इमल्शन, फोम, लाइक दैट। तो एग्जाम्पल अगर अपन लिखेंगे तो देख भाई, वी नो दैट व्हाई द स्काई लुक्स ब्लू, बिकॉज जो सन से लाइट आता है वो स्कैटर्ड होता है, दैट्स व्हाई द स्काई लुक्स ब्लू। Sky looks blue due to scattering of light. Looks blue due to scattering of light. मतलब ये छोटे क्लासेस में अपन काफी पढ़ते हैं, इसलिए स्काई लुक्स ब्लू बताने की जरूरत नहीं, वो स्कैटरिंग लिखा हुआ है, यू नो दैट।
फिर जैसे कोई कॉमेट कभी कभी रात को दिखता है, तो कॉमेट जब जा रहा होता है तो उसका टेल भी दिखता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि उसके जाने से जो एनर्जी जनरेट होती है पार्टिकल में, उधर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनिशिएट होकर वो स्कैटर्ड, जो उसकी उस पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा तो स्कैटर्ड लाइट अपन को दिखता है। तो टेल ऑफ अ कॉमेट that is because of the scattering of light, tail of the comet. ठीक है ना? और क्या हो सकता है? बस हो गया, मतलब बाकी आप जैसे अपन से कहेंगे भाई सिनेमा हॉल में अगर अपन देखते हैं तो मूवी जब चलता है तो फोकस तो उस पर होता है ना, स्क्रीन पे, लेकिन फिर भी अपन साइड में कोई बैठा हुआ है उनको देख सकते हैं आराम से। रीजन, क्योंकि जो फोकस उस स्क्रीन पे जाता है उससे क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल एयर में होंगे वो स्कैटरिंग की वजह से क्या हो जाता है, वो ग्लो करता है, सिनेमा हॉल थोड़ा सा ग्लो करता है। तो दैट इज सो अपीयरेंस ऑफ राइट ना, ब्राइट अपीयरेंस इन द सिनेमा हॉल, दैट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो डस्ट पार्टिकल है उसको उसकी वजह से लाइट जो स्क्रीन पे फॉल करना चाहिए वो थोड़ा थोड़ा स्कैटर्ड हो जाता है। तो उस टाइप के एग्जांपल अपन इसमें दे सकते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ना द थर्ड वन इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी में लिखूंगा मैं ब्राउनियन मूवमेंट, ये भी अपन ने काफी पढ़ा हुआ है। मूवमेंट, the zigzag motion of particles in the solid is called the Brownian moment. Brownian moment में क्या होता है, we used to say that कि अगर मान लो अपने पास एक कोलाइडल सॉल है, ये कोलाइडल सॉल है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पार्टिकल्स का पाथ फिक्स नहीं होता, वो जिगजैग मोशन होता है। ऐसे ना, वो कोई भी किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, दैट इज कॉल्ड अ जिगजैग मोशन। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने क्या पढ़ा, ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनियन मोमेंट होता है जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ये जिगजैग मोशन इसलिए होता है क्योंकि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इन पे चार्ज होता है, तो वो क्या करते हैं आपस में, जो पार्टिकल, जो भी पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब पे एक जैसा ही चार्ज होगा, तो वो आपस में रिपेल करते हैं, राइट? तो आपस में रिपेल करेंगे, अगर रिपेल करेंगे तो रिपेल करने के बाद उनका कोई डायरेक्शन तो होगा नहीं, सो दे विल बी ऑलवेज इन अ जिगजैग मोशन। तो वो रिपल्शन की वजह से जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं ना, उनके प्रेसिपिटेशन नहीं होते। जैसे अपन ने देखा हुआ ना मेडिसिन्स, लिक्विड मेडिसिन्स, लिक्विड मेडिसिन पे क्या होता है, उसमें लिखा होता है भाई 3 इयर्स तक वो डिपॉजिट नहीं होगा, प्रेसिपिटेट नहीं होते लिक्विड मेडिसिन। 1 ईयर 2 ईयर रखा रहे वो नहीं होता, बिकॉज वो क्या करता है कि जो मेडिसिन पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा कोलॉइड ऐड करते हैं, वो प्रोटेक्टिव पावर होता है, वो इसके बाद अपन पढ़ेंगे कैसे प्रोटेक्शन करते हैं। तो हर एक पार्टिकल पे सेम चार्ज होता है उसमें, राइट ना, हर एक पार्टिकल पे सेम चार्ज होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, सभी पार्टिकल पे एक जैसा चार्ज होगा। अगर सभी पार्टिकल पे एक जैसा चार्ज होगा तो फिर उनमें आपस में रिपल्शन होता रहेगा, सो कभी भी वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, वो डिपॉजिट नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड द zigzag, so the zigzag motion of particles in a solid, motion of particles in the solid is called Brownian moment, is called Brownian moment, उसको अपन कहते हैं Brownian moment।
The zigzag motion of particles in the sol is called zigzag motion. ठीक है? Due to this, the sol will not precipitate even for years. इसकी वजह से जो आपका कोलोइडल सॉल होता है वो प्रेसिपिटेट नहीं होता इवन फॉर मेनी इयर्स, वो प्रेसिपिटेट नहीं होता है। और अगर पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो ब्राउनिंग मोमेंट कम हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ब्राउनिंग मोमेंट बढ़ेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ब्राउनियन मोमेंट जो होगा will decrease with the mass of particle, but increases with temperature. But it increases with temperature. But increase with temperature. Because temperature बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ब्राउनिंग मोमेंट बढ़ेगा, पार्टिकल का मोमेंट बढ़ेगा। अब जैसे अपन को भाई कोलॉइड्स पे चार्ज होता है तो कैसे पता चलेगा, तो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी पड़ती है। चार्ज कौन सा चार्ज है, अननोन चार्ज, मतलब अपन अननोन कोलॉइड्स पे चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं सबसे। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो पार्टिकल किस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है उससे तो चार्ज पता चल जाएगा कि उसमें चार्ज कौन सा प्रेजेंट है। अगर कैथोड की तरफ जा रहा है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो अपन कहेंगे उस पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, that will be the fourth part, electrical properties, right? Electrical properties, all colloidal particles in salt carries either negative or positive charge, with them. मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज तो होगा, बट ऑल द पार्टिकल विल हैव सेम चार्ज इन सॉल्ट। All particles carry same charge. All particles carry same charge. तो उनके सेम चार्ज। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स। तो अपन क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स, व्हाट आर पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स, व्हाट आर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स। तो पॉजिटिवली चार्ज करा, पॉजिटिव कोलॉइड्स है। तो जैसे अगर अपन लिखेंगे तो ऑल हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, chromium hydroxide, calcium hydroxide, these all will carry the positive charge, all hydroxides. Hemoglobin, globin, titanium oxide, the dyes like methylene blue,
They are positively charged colloids. Sea water, it is a positively charged colloids. देख सकते हैं. ठीक है. Negative colloids. मेटल सल्फेट्स, जितना भी मेटल सल्फेट्स है ना, दे आर नेगेटिवली चार्ज कलॉइड्स. कुछ लिख लेते हैं जो अपन से पूछ सकते हैं. AS2S3, कैडमियम सल्फाइड, एंटीमोनिक सल्फाइड, these are few sulfides. All metal salts. अपने मेटल सॉल्ट वो ब्रेडिग्स-आर्क मेथड पढ़ा था कल क्लास में, और अपन ने चेक किया था कि ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन उस पर स्टिक हो जाते हैं मेटल पे. गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, ये अपन ने बनाया. हमने गोल्ड से बनाया था, बट ऑल मेटल सॉल्ट्स. डाइज लाइक ये मेथाइलिन ब्लू जो होता है वो बेसिक डाई होता है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं बेसिक डाई, क्योंकि यहां पर जो डाइज होते हैं वो एसिडिक होता है. एसिडिक डाइज लाइक मतलब एक तरीके से, क्योंकि डाइज अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा इनके स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे, तो हमें यहाँ पर पता रहेगा भाई एसिडिक डाई और बेसिक डाई एक बार सर ने बताया. तो एसिडिक डाइज लाइक ईओसिन, कंगोरेट, ये जो होते हैं ये नेगेटिव चार्ज कलॉइड्स हैं. सी वाटर इज अ positively charged colloids, but river water is a negatively charged colloids. River water या muddy water, they are negatively charged colloids. Blood is a negatively charged colloids. Hemoglobin is positively charged, but blood is a negatively charged colloids. That's why they are attracted ना. Blood जो होता है उसमें hemoglobin और blood जो होता है colloid, वो आपस में attracted इसलिए रहते हैं क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज. पर जैसे अपन को पता है ना, जैसे रिवर फ्लो करके जाता है ना, और जहां पर वो सी में मिलता है, जो रिवर होगा ना, जब वो सी में आके ऐसे ना, सी में मतलब मिलेगा वहां पर, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन होता है. अपन ने पढ़ा हो ना सुंदरबन डेल्टा, पढ़ा हो ना. तो वो डेल्टा यहां पर ही क्यों बनते हैं, व्हाई नॉट वही पहले बन गया यहाँ पर डेल्टा. वो डेल्टास यहां पर बनते हैं क्योंकि ये होता है क्या, रिवर वाटर नेगेटिवली चार्ज, और सी वाटर होता है पॉजिटिवली चार्ज. तो ऑन द माउथ ऑफ द रिवर जब वो सी में मिलेगा, तो वहां पार्टिकल्स जो रिवर में थे ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज होंगे, और न्यूट्रलाइज होंगे तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारा डिपॉजिट हो जाता है. उन्हीं डिपॉजिट्स को अपन कहते हैं रिवर, राइट ना. उन्हीं वाटर को अपन कहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अपन डेल्टास, उन्हीं को वही डेल्टा फॉर्मेशन करता है. So we can write like this. That is the positive and negative colloids. We'll write that reason for charge on colloids. तो अपन लिखेंगे ड्यू टू, जो अपन को अच्छे से पता है, पहले तो वही लिख देते, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल सॉल्ट.
अपन ने ब्रेडिग्स-आर्क मेथड में पढ़ा कि मेटल सॉल्ट पे नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होता है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू ऑक्सीजन एटम, वो आयनाइज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन इन पे एब्सॉर्ब होता है, ब्रेडिग्स-आर्क मेथड में लिखा था। दूसरा अपन लिखता है ड्यू टू सेलेक्टिव एब्सॉर्प्शन। इसमें आप लिख भी सकते हो ब्रेडिग्स-आर्क मेथड, आर्क मेथड अपन को पता है, ब्रेडिग्स-आर्क मेथड अपन लिख भी सकते हैं। एसिडिक डाई में क्या लिखा है, लिखा था ईओसिन और कांगोरेट। रिवर वाटर नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है, ऑब्वियसली बात है, उसमें जो आयंस होते हैं वो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं। रिवर वाटर में बाइकार्बोनेट होता है, सो इट विल बी राइट नेगेटिवली चार्ज। So due to selective adsorption, selective adsorption अपन ने किसमें पढ़ा था, पेप्टाइजेशन में। पेप्टाइजेशन मेथड में अपन ने सीखा था कि भाई अगर कोई दो केमिकल को आपस में रिएक्ट करोगे तो प्रेसिपिटेट बनेगा, है ना, और इन दोनों में से किसी एक को एक्सेस में ऐड करो। तो मान लेते हैं अपन ने कि भाई किया ही एक्सेस में ऐड किया, इसको एक्सेस में ले रहे हैं, तो इसको एक्सेस में लोगे तो इसका कॉमन एनाइन क्या होगा, वो उस पर चार्ज मिलता है। ये अपन ने कल ही पढ़ा हुआ है। और कभी कभी होता है दैट इज ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रिफिकेशन। That is the right now, that is friction of particles, आप उसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन भी लिख सकते हैं, ड्यू टू that is due to frictional, due to friction of particles and force among particles when they are moving, among moving particles। तो जब पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं तो जब दो पार्टिकल आपस में टकराएंगे तो टकराने से क्या होता है, उनके सरफेस पे एनर्जी बढ़ेगा, सरफेस पे एनर्जी बढ़ेगा तो किसी का इलेक्ट्रॉन लूज होगा और किसी पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा, उस वजह से भी चार्ज आते हैं। सो दीज आर द 3 रीजंस जिसकी वजह से चार्ज आता है। तो जब अपन चार्ज की बात करेंगे, अपन कहते हैं हायर द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स मोर विल बी द रिपल्शन अमंग देम, है ना। तो जितना ज्यादा उनके बीच में रिपल्शन होगा उतना ज्यादा कोलाइडल सॉल्यूशन का स्टेबिलिटी होगा। So stability of colloids is directly proportional to the charge on colloidal dispersed phase on particles. Discharge on अपन इस चार्ज को कैलकुलेट भी करते हैं मिली वोल्ट्स में। So the charge on the particle can be calculated on particle can be calculated by electrophoresis. By electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस आगे मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोलाइसिस ही होता है, बस उसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का अपन क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए थोड़ा अच्छा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे बनाते हैं वैसे इसमें नहीं बनाते, इसमें थोड़ा अच्छा सा ऐसे यू शेप में ट्यूब ले लेते हैं और इसमें फिर अपन इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, इसको यहां से बंद कर देंगे और यहां इलेक्ट्रोड लगा देंगे। एक इलेक्ट्रोड इधर लगा लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा लेते हैं और ये इलेक्ट्रोड बोल देते हैं भाई ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है।
अब मान लो अपन ने अज्यूम कर लिया कि मैंने इसके अंदर एक कोलाइडल सोल्यूशन ले लिया, इसके अंदर एक कोलाइडल सोल्यूशन, सपोज कर लेते हैं अपन ने आर्सेनिक सल्फेट, तो आर्सेनिक सल्फाइड अपन को पहले से पता है कि ऑल दी सल्फाइड्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो इसमें क्या होगा, जो आर्सेनिक सल्फाइड होगा AS2S3 दैट विल मूव टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड और वो यहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अगर ये यहां डिपॉजिट होगा तो इलेक्ट्रोड का मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो अपन को पता चल जाएगा कि इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज है उस पे कौन सा चार्ज है, सीधे सीधे इलेक्ट्रोलाइसिस है, उससे कैलकुलेट कर लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो पार्टिकल्स होंगे आर्सेनिक सल्फाइड के, क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, उस टाइप से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। So this is electrical properties. The strength of charge on a colloidal particle is called as, उसको अपन कहते हैं zeta potential, उसको कहते हैं अपन zeta potential या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, मतलब ये एक नाम दे दिया भाई कि ये इस नाम से आप उसको बोलना, क्योंकि पहले ही अपन पोटेंशियल वगैरह तो अपन को पता ही है, तो अपन कहते हैं कि इसको आप जीटा पोटेंशियल नाम दे देना उस चार्ज को, दैट्स ऑल। अगर जीटा पोटेंशियल 0 हो जाए तो इसका मतलब चार्ज नहीं है, वो अनस्टेबल होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, दैट इज। सो वी गॉट द चार्जेस, ये अपन को याद ही करना पड़ेगा। तो यार मतलब हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, सल्फाइड और मेटल्स, मेटल्स तो अपन को पता है क्योंकि ब्रेडिंग मेथड में बनाया था, सल्फाइड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और अभी ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, इनको मिक्स करके एक इंटीजर टाइप बनाया और पूछ लिया कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैज आर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स, लेकिन ये है कि इसके बाहर नहीं जाएगा अपना क्वेश्चन, इसके बाहर अपना क्वेश्चन नहीं जाएगा, उनको एग्जांपल इसी से बनाना पड़ेगा, राइट। तो अब मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड कोआगुलेशन। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड कोआगुलेशन। कोआगुलेशन, कोआगुलेशन होता है द phenomena of converting the colloidal particle into the precipitate, मतलब पेप्टाइजेशन का उल्टा, इट इज रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में अपन क्या करते हैं, ये पेप्टाइजेशन अपन प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कोलाइडल सॉल्ट, तो उसका रिवर्स करना है अपन को, मतलब इसको कोलाइडल पार्टिकल को वापस उसमें कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे अच्छा ये नेगेटिवली चार्ज है, चलो इसमें कैटाइन डाल दो, वो कैटाइन क्या करेगा, इसको हटा देगा, क्या करेगा वो कैटाइन, आई नेगेटिव को हटा देगा तो वापस प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे द फिनोमेना of converting the colloidal salt solution into the precipitate. The precipitate is called right now into the precipitate. That is called coagulation. ठीक है, by adding a suitable electrolyte. अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है, लिख ही देते हैं सुटेबल के लिए, तो पता है ना अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स, चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट।
इज कॉल्ड कोआगुलेशन। ठीक है, हमें अपोजिट चार्ज ऐड करना होता है पार्टिकल, तो वो कोआगुलेशन होता है। ठीक है, राइट। तो विल रीड दैट negatively charged colloids charge colloids, उनको अगर अपन को प्रेसिपिटेट करना है तो अपन कहेंगे अच्छा नेगेटिवली चार्ज है तो आप उसमें ऐड कर दो कैटाइन को। So colloids are coagulated by cations, and positively charged coagulated by anions. होगा क्या, इसमें कोआगुलेशन वैल्यू भी होती है, क्योंकि भाई कैटाइन्स और एनाइंस पे सेम चार्ज थोड़ी होते हैं, भाई कैटाइन और एनाइन तो अलग अलग चार्ज भी हो सकते हैं। Cations or anions can have different valency. So अगर मान लो मान लेते हैं बल्कि कलर्स पे -1 आई है, तो इसको अगर कोआगुलेट करना है तो मैं कोआगुलेशन के लिए इसको अट्रैक्ट करने के लिए Na पॉजिटिव भी डाल सकता हूँ, Mg पॉजिटिव भी डाल सकता हूँ और एल्यूमिनियम +3 भी डाल सकता हूँ। इसका एक कैटाइन एक आई को ले सकता है, लेकिन ये 2 आई को ले सकता है और ये 3 आई को ले सकता है। इसका मतलब जितना ज्यादा वैलेंसी होगा उतना ज्यादा वो इजीली नेगेटिव चार्ज को ले सकता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, या जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज को ले सकता है। तो कोआगुलेटिंग पावर जो है वो डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा वैलेंसी है। सो कोआगुलेटिंग power will be directly proportional to the valency. That will be directly proportional to valency. अपन valency को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसलिए मैं इसको स्क्वायर भी लिख देता हूं। और एक होता है कोआगुलेशन वैल्यू, एक होता है कोआगुलेशन वैल्यू, लेकिन इससे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कोआगुलेशन वैल्यू से मतलब प्रेसिपिटेशन। सो कोआगुलेशन वैल्यू जितना कम होगा उतना ईज ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये कोआगुलेशन वैल्यू है क्या, उसको अपन वर्ड्स में लिख लेते हैं। कोआगुलेशन वैल्यू, व्हाट इज कोआगुलेशन वैल्यू? देख लो, मैं आगे बता देता हूँ। ये अपन लिखेंगे ऐसे ना, कोआगुलेशन वैल्यू लिख लेते हैं और वो पहले अपन ये भी लिख सकते हैं। और इसको एक्चुअली जो एक्सप्लेन किया था ना, तो हार्डी ने उसको एक्सप्लेन किया था, साइंटिस्ट हार्डी, उसने इसको एक्सप्लेन किया था कि भाई जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा उसका कोआगुलेटिंग पावर। वो तो अपन को वैसे भी दिख रहा है कि भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोआगुलेटिंग पावर। अकॉर्डिंग टू अपन लिख लेते हैं हार्डी रूल, है ना, द कोआगुलेटिंग पावर ऑफ अगर अपन कैटाइंस की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एल्यूमिनियम आयन का ज्यादा होगा मैग्नीशियम आयन से, मैग्नीशियम आयन का ज्यादा होगा सोडियम आयन से। हायर द चार्ज मोर इज द कोआगुलेटिंग पावर। अब एक्चुअली मान लो मतलब बाकी इसमें इससे ज्यादा पूछते नहीं है, तो अपन बात नहीं करते। एंड फॉर एनाइंस अगेन द चार्ज अगर ज्यादा, वैसे तो वैलेंसी लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ एनाइंस तो लिख ही लेते हैं। तो FeCN6 4 नेगेटिव हो सकता है, फॉस्फेटाइन पे 3 नेगेटिव हो सकता है,
सल्फेटाइन पे 2 नेगेटिव हो सकता है, नाइट्रेटाइन पे नेगेटिव हो सकता है, सीएल बी आर भी लिख सकते हैं, सीएल और बी आर भी लिख सकता है। मतलब मैंने क्या नहीं किया, मैंने ना सेम अगर चार्ज होगा तो क्या होगा सर, छोड़ो, तो उतना पूछेंगे नहीं तो फिर फालतू में तुम भी याद करोगे, अच्छे याद कर लेते हैं सब, मतलब हमको अगर पोटेशियम और सोडियम होगा तो बताओ किसका ज्यादा होगा। तो इस टाइप का अपन से क्वेश्चन आता है, और आ भी जाए तो एक आध एग्जाम्पल लिख देता हूँ। कैटाइंस में ना, अगर कैटाइन का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा होगा, एनाइंस में उल्टा होता है। एनाइंस में क्या होगा, सीएल का कोऑगुलेटिंग पावर बीआर से ज्यादा होगा, बस जबकि सीएल छोटा, तो वो अलग अलग होते हैं, इसलिए मैंने कहा था। और वो पूछेंगे नहीं अपन से तो ज्यादा अपन को उसको वो नहीं करता, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लेते उसको, कि अगर सेम होगा तो क्या होगा ऐसे, और होगा तो अपन एक आध पार्ट लिख लेते हैं कि भाई अगर वैलेंसी सेम है तो सर ने हमको बताया था कैटाइन के केस में बड़ा होना चाहिए और एनाइन के केस में छोटा होना चाहिए, साइज देखो बता, ये हार्ड, वो तो अपन को पहले से पता था, आपने पहले ही बता दिया। ये बताओ ये जो कोऑगुलेशन वैल्यू है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ मिलीमोल्स में है, मतलब मिनिमम अमाउंट में क्या, मास क्या, मिलीमोल्स में अमाउंट ऑफ, ये cations or anions required. So the minimum amount of millimoles of electrolyte required to coagulate 1 liter of colloidal solution is called coagulation, और इसको ना फ्लॉकुलेशन भी बोलते हैं, फ्लॉकुलेशन में इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा, जितना अगर मिनिमम, तो फ्लॉकुलेशन वैल्यू और कोagulation वैल्यू जितना कम होगा उतना अच्छा कोagulating पावर होगा, क्योंकि जैसे अगर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, तो बताओ किसका अमाउंट ज्यादा डालना पड़ेगा अपन को, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज कॉलोइड्स को प्रेसिपिटेट करना है तो अपन कहेंगे एल्यूमिनियम का अमाउंट कम लगेगा, क्योंकि वो 1 मोल 3 मोल्स एनाइन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, मैग्नीशियम 2 मोल्स को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, ये 1 ही मोल को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि भाई चार्ज फ्लॉकुलेशन वैल्यू जितना छोटा हो, मतलब मिनिमोल जितना कम ऐड करना पड़े प्रेसिपिटेट करने के लिए, उतना अच्छा उसका कोagulating पावर, coagulating power is inversely proportional to coagulation. एल्यूमिनियम का वैल्यू सोडियम के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 537 टाइम्स ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन, ठीक है ना, उसके कंपैरिजन में 537 टाइम्स ज्यादा होता है। सो दिस इज, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, लिखो भाई, so I will read that for coagulation of 200 ml of As2S3 requires 5 ml of 1 molar NaCl for complete precipitation. Calculate the coagulation value of NaCl.
इसको ऐड कर रहे हैं ना इलेक्ट्रोलाइट को, ये तो ये ऑक्सीड कैसे भाई, नेगेटिव चार्ज है ना, आर्सेनिक सल्फाइड है ना। तो अपन ने ऐड किया AS2S5 है, अपन को पता है ये नेगेटिव चार्ज का है। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में जैसे अपन ने NaCl लिखा, तो भाई NaCl में तो कैटायन भी है और एनायन भी है, दोनों है। ये नेगेटिवली चार्ज होता है तो सोडियम उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो Cl कर देता है एकदम। तो कैलकुलेट द कोऑगुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl। ठीक है भाई, NaCl का कोऑगुलेशन वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है, तो अपन कहेंगे बाय डेफिनेशन देखें 200 ml के लिए कितने मिलीमोल्स चाहिए, 200 ml of AS2S3 requires 5 into 1, that is equal to 5 millimoles of NaCl, है ना भाई। वॉल्यूम इनटू मोलारिटी इज मिलीमोल्स। तो बताओ 1 लीटर के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा NaCl, आपने यही तो लिखा, millimoles to precipitate 1 liter of the color, therefore 1 liter of this solution requires 5 into 5 कर देते हैं भाई, 5 टाइम्स हो जाएगा 25 of NaCl। आपका coagulation value is 25, therefore coagulation value is equal to 25। ये आपका आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन अपन को इंटीजर टाइप में पूछ सकता है। पूछ रहे थे ना सर पार्ट में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल है, राइट। So these are the 5 properties of colloids। उसमें अपन को एक और टर्म पढ़ना होता है, प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलाइड, उसको अपन एक टर्म देते हैं दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। तो ठीक है, पहले अपन ये खत्म कर लो आप, फिर मैं आपको एक प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलाइड्स देती हूँ। प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलाइड्स, पावर ऑफ protective power of lyophilic colloids on or lyophilic colloids। ऐसा नहीं भी लिखते अपन, प्रोटेक्टिव पावर भी लिखते तो भी चल जाता है। ठीक है, अभी होता क्या है कि जो लाइफोबिक कोलाइड्स होते हैं ना, अभी चार्ज तो सभी कोलाइड पर होता है,
तो जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, लायोफोबिक नहीं होता। लायोफिलिक जो होते हैं वो नहीं होते इजीली प्रेसिपिटेट, या वाटर अट्रैक्टिव, वो वाटर हिटिंग। तो अपन क्या करते हैं, ये इजीली प्रेसिपिटेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो थोड़े से अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट से भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जैसे मेटल्स होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इनके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो, आपने वड़ा पाव पेपर में रैप करके दे दिया, तो आप किसी चीज को रैप करके उसको दे दे रहे हो कि भाई लो, ये अब खराब नहीं होगा क्योंकि आपने ऊपर से उसको कवर कर दिया। ऐसे ही मेडिसिन में होता है, ऐसे ही फूड्स में होता है, जो पैक्ड फूड है। आप कोई भी पैक्ड फूड खाओगे ना, उसमें केमिकल जरूर होगा, दैट्स व्हाई दे आर हार्मफुल। तो अपन क्या करेंगे कि जो भी लायोफोबिक है ना, जो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाता है क्योंकि उसका चार्ज इजीली न्यूट्रलाइज हो जाता है, अपन क्या करेंगे, उसके ऊपर एक ऐसे लेयर लगा देंगे लायोफिलिक का, फिर उसका चार्ज एक्सपोज नहीं होगा। तो इस लेयर को अपन कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लायोफिलिक। और ये जो होता है इलायोफोबिक, सो दैट इसका प्रेसिपिटेशन। तो अपन क्या लिखते हैं, मैं कुछ बोला ही नहीं, राइट ना। सो आप टेंशन मतलब, सो दैट, so lyophilic salts are easily precipitated, does it require the protective layer of lyophilic so that get precipitated, ठीक है, right ना, that is called, that will not get precipitated, वो precipitate नहीं होगा। ठीक है भाई, लिख लेंगे, लिखो। So what will happen, अपन इस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर लिखेंगे। तो किसका प्रोटेक्टिव लेयर लगाएंगे, लायोफिलिक, लायोफिलिक में किसका, तो द लायोफिलिक, चेंज ही कर लेता है, द लायोफिलिक all used are like gelatin, starch, acid, like gelatin, casein, ऐसे लिखेंगे अपन, मतलब लाइक दिस, हीमोग्लोबिन, albumin, और गामा अरेबिक, और we can write even potato starch,
ये ऐसे करते हैं। मैंने इसलिए लिखा ऐसे कि ना, मतलब लाइक दीज आर व्हाट वी यूज टू ऐड। अब इनका प्रोटेक्टिव पावर भी अलग अलग होता है। जैसे अपन ने देखो, इसके लिए जैसे एग्जांपल अपन चेक करें, मेडिसिन होता है ना, इवन टैबलेट्स होता है। टैबलेट को अगर निकाल के आप बाहर भी रख दोगे ना, तो इवन फॉर अ मंथ वो ना डिजोल्व नहीं होता, वो पाउडर में कन्वर्ट नहीं होता अपने आप। व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि उसके ऊपर जिलेटिन का कोटिंग होता है, वो मॉइस्चर से खराब नहीं होगा, राइट? इवन लिक्विड मेडिसिन जो होते हैं उनमें भी थोड़ा सा जिलेटिन ऐड करते हैं, क्योंकि जिलेटिन का प्रोटेक्टिव पावर बहुत अच्छा होता है। मैंने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, मुझे लगा जब एग्जांपल लिख ही रहे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव पावर किसका? जिलेटिन का। सबसे कम किसका? प्रोटेक्टिव स्टार्च। तो मैंने उसको ऑर्डर में लिखने के लिए ऐसे लिखा। ऐसे लिखते हैं आप, उससे अच्छा ऑर्डर में लिख दो, मुझे पता रहेगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर सबसे अच्छा किसका होता है? जिलेटिन का। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिलेटिन को सबसे कम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके प्रोटेक्टिव पावर सबसे अच्छा है। तो इनका जो प्रोटेक्टिव पावर हमें कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट किया, वो कैसे बताया? तो उसको ज़िग्मोंडी ने अपन को एक टर्म दिया था, गोल्ड नंबर, उससे अपन ने कैलकुलेट किया इनका प्रोटेक्टिव पावर। कैसे आपने कैलकुलेट किया कि किसका अच्छा है, किसका खराब है? और पोटैटो स्टार्च तो अपन को पता है, वो इजीली मिल भी जाता है। और मोस्टली अगर आप देखोगे तो 70 to 75% स्टेशन पे जो टी मिलता है ना, वो यूरिया से बना होता है। क्या करते हैं वो? वाटर लेते हैं और उसमें यूरिया डिजोल्व कर लेते हैं। अब यूरिया डिजोल्व करोगे तो जब आप उसको रखोगे तो यूरिया के पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं, क्यों? वो आपस में कोलैप्स होके और सेटल हो जाते हैं। अब वो क्या करेगा? उसमें पोटैटो स्टार्च डाल देगा। सोप भी होता है, क्योंकि सोप के साइड पार्टिकल भी बड़े होते हैं। वो पोटैटो स्टार्च डाल देगा या सोप डाल देगा। अब सोप डालना थोड़ा अच्छा नहीं होगा, तो पोटैटो स्टार्च डाल देगा थोड़ा सा। तो जो यूरिया के पार्टिकल होंगे ना, उन पे क्या आ गया? प्रोटेक्टिव लेयर। अब वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, कोआगुलेट नहीं होंगे। हमको लगता है बढ़िया चाय पी रहे हैं, वो चाय नहीं पी रहे हैं, यूरिया पी रहे हैं ना। 75% स्टेशन पे जो चाय मिलता है वो मोर देन 75। वेस्टर्न यूपी में तो ऑलमोस्ट जो मिल्क 50% से ज्यादा मिल्क जो होता है वो यूरिया होता है। हाँ, चलो अब अपन देखते हैं। तो हमको समझ में आ गया, अच्छा अच्छा मिल्क भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। तो अब इनका टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटेक्टिव पावर, calculate the strength of the protective power अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ज़िग्मोंडी ने अपन को gave a term called गोल्ड नंबर। डायरेक्टली यहां भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने अपन को एक टर्म दिया गोल्ड नंबर। वहां गोल्ड से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि गोल्ड नंबर के लिए अपन गोल्ड से कोई नंबर देने वाले हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई। अब गोल्ड नंबर को कैसे कैलकुलेट किया वो देखते हैं। गोल्ड नंबर, व्हाट डज ही सेज, ज़िग्मोंडी ने अपन को क्या कहा कि आप एक वेसल में गोल्ड सोल्यूशन ले, ये मेरे पास 10 ml ऑफ गोल्ड सोल्यूशन। उनको पता है रेड कलर का होता है, ठीक है। अब इसमें गोल्ड पार्टिकल्स होंगे, तो जब भी इसमें NaCl ऐड करूंगा ना, ये होता है 1 ml ऑफ NaCl, 10% बाय मास ऑफ NaCl।
ये सोल्यूशन में ऐड करूंगा। तो अगर इसको आप ऐड करोगे तो जो यहां पर गोल्ड होगा वो NaCl से रिएक्ट करके AlCl3 बना देगा, मतलब ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू में कन्वर्ट होगा तो अपन कहेंगे भाई आपका जो गोल्ड सॉल है नेगेटिवली चार्ज तो प्रेसिपिटेट हो गया, तो अपन कहेंगे अच्छा प्रेसिपिटेट हो गया, कोई बात नहीं, अपन इसमें एक लायोफिलिक सॉल्ट डालते हैं इनमें से। तो इनमें से एक किसी को अपन को मिलीग्राम में ऐड करना है, इन मिलीग्राम्स। तो अगर इसको ऐड करूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा अमाउंट यूज करना पड़ेगा, और इसको यूज करूंगा तो सबसे कम अमाउंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है। वो कैसे कैलकुलेट किया, बार बार ऐड करके कि वो प्रेसिपिटेट ना हो। सो अपन क्या करेंगे, द मिनिमम मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक, the minimum milligram of lyophilic added to the 10 ml of gold solution, so that its precipitation will not take place by addition of 1 ml of 10% NaCl. That minimum milligram is called gold number. ये जो मिनिमम मिलीग्राम है ना वही इसका गोल्ड नंबर होगा। तो इसका गोल्ड नंबर सबसे कम आता है और इसका सबसे ज्यादा आता है। मतलब इसमें जो प्रोटेक्टिव पावर है वो गोल्ड नंबर के वैल्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मिनिमम मिलीग्राम का मतलब जिसका मिनिमम अमाउंट ऐड करना है उसका प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा है। इसका सबसे कम अमाउंट लगेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसका सबसे ज्यादा। तो अपन लिख सकते हैं अच्छा प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर। और गोल्ड नंबर का वैल्यू क्या है, वो मिलीग्राम है, मिनिमम मिलीग्राम। तो अपन इसको वर्ड्स में लिख देते हैं, द मिनिमम amount of, the minimum amount वो इन मिलीग्राम लिख लेते हैं ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट must be added to the 10 ml of gold salt so that precipitation of to the 10 ml of gold salt so that its precipitation will not take place, not take place by addition of 1 ml of 10% of NaCl solution. That minimum milligram is called gold number. ये होता है भाई गोल्ड नंबर, दिस इज द गोल्ड नंबर। दिस इज द गोल्ड नंबर। ये होता है भाई गोल्ड। और सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव एक्शन इसका होता है, सबसे कम इसका होता है, इनमें से किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो मोस्टली जो इंडस्ट्रीज में मेडिसिन में यूज होता है वो सभी जगह जेलेटिन यूज होता है। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव। दिस इज योर कोलाइड्स, ये आपका कोलाइड का चैप्टर है। ठीक है,
यहाँ आपका चैप्टर कोलॉइड्स वाला पार्ट खत्म। हमने सारे टर्म्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ा। बाकी कोलॉइड्स जैसे इमल्शन वगैरह है, जेल वगैरह अपने सिलेबस में है नहीं। इमल्शंस में ओनली डेफिनेशन है, वो अपन ने पहले से पढ़ रखा है। इमल्शन, so in which dispersed phase is liquid and dispersion medium वो भी लिक्विड होता है, दोनों ही लिक्विड होता है। एग्जाम्पल लिखूंगा तो मिल्क, बटर, क्रीम, they can be the examples. Emulsions में मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं। मिल्क में लिक्विड फैट अपन डिसॉल्व करते हैं वाटर में। So that is, ये आपका कोलॉइड्स वाला पार्ट है और आपका चैप्टर है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। स्कूल के लिए भी अपन ने सारा कुछ पढ़ा, मैंने आपको सारे टर्म्स बताए, क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, ये इमल्शंस राइट। शीट का पीडीएफ नहीं भेजा मैंने, अभी भेजता हूँ। ठीक है ना, मैं शीट का पीडीएफ अभी भेज देता हूँ। ये आपका चैप्टर, अगर कुछ और होगा मैं एक बार देख लूंगा। अगर अपने उसमें ना स्टेट बोर्ड वाले बुक में कुछ और है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो कल मैं शीट भेजता हूँ, कल आप थोड़ा सा एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 एटलीस्ट आप करके आना, तो अपन डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद अगर कोई डाउट्स होगा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो मैं शीट अभी भेज देता हूँ। कल सुबह मतलब अगर डाउट्स होंगे तो करेंगे अपन, नहीं तो जरूरत नहीं है, फिर आप लोग पढ़ सकते हैं। बट यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, अगर होगा तो फिर इन्फॉर्मेशन आएगा, अगर होगा तो, नहीं तो अदर योर चैप्टर इज ओवर राइट। अपलोड तो कर दिया था मैंने, परसों से एग्जाम है तो कोई क्लास नहीं होगा, होगा तो डाउट्स करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, परसों से एग्जाम है तो फिर नहीं करूंगा मैं कल क्लास। आप पढ़ो अपने एग्जाम के लिए, कोई डाउट्स है, कोई टॉपिक पढ़ना है, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप बता दो, तो डाउट मैं क्लास करूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार क्यों नहीं दिख रहा है वो, तो अपन कर लेंगे, है ना। 12th कब स्टार्ट होगा ये तो अकबर जी बता सकते हैं, उनके हिसाब से। वो तुम लोगों ने कब कहा है, वो क्या प्लान कर रहे हैं, तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से प्लान करेंगे, वो जब करेंगे तो हम शुरू कर लेंगे। मुझे लगता है एग्जाम के बाद ही शुरू करना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, ओके। यस सर।